الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارا یوٹیوب چینل 30 آج ہمارا موضوع کیا یہ جنگ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے، کیا یہ جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم اس حوالے سے 3 سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ایٹمی جنگ نہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایٹمی جنگ ہونے کے کتنے چانسز ہیں اور اس کی کتنی وجوہات ہیں۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس خدشے کو یعنی کہ ایٹمی جنگ کو کیا ٹالا جا سکتا ہے؟ اگر ٹالا جا سکتا ہے تو کیسے ٹالا جا سکتا ہے، اس کی بھی وجوہات ہم ڈسکس کریں گے۔ آئیے ہم اس اہم موضوع پر اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال پر کہ ایٹمی جنگ نہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں۔ اللہ کرے یہ جنگ نہ ہو تو ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا جواب ہم اس طرح سٹارٹ کریں گے کہ اب تک کی جتنی بھی میں نے رپورٹس دیکھی ہیں اس حوالے سے ماہرین کے مطابق ایٹمی جنگ نہ ہونے کے امکانات ایٹمی جنگ ہونے کے امکانات سے کم ہیں، لیکن اگر آپ کہیں صفر ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم پہلی وجہ پہ آتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار، ان کی حدود جب یہ گرائے جاتے ہیں، جب استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، ان کا تکنیکی پہلو کیا ہوتا ہے۔ عموماً ایٹمی ہتھیار بڑے سنگل ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ایران کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایران کا حدود عربہ، اس کا جغرافیہ، اس کی وسعت، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایران کی فوجی صلاحیت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایک ایسی جگہ نہیں جس کو آپ مرکزی پوائنٹ قرار دیں اور اس پر ایٹمی حملہ کریں اور آپ کو مطلوبہ نظر مل جائے۔ نہ ہی ایران پرانے زمانے کا جاپان ہے۔ ایران میں اہل تشیع اور سنی دونوں مسلمان بستے ہیں۔ جہاں مسلمان بستے ہوں اور جو حسین کے پیروکار ہوں، وہ مسلمان شہادت سے نہیں ڈرتے۔ آپ ایک ایٹمی دھماکہ کر لیں، آپ وہاں 10 ایٹمی دھماکے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جتنے شہید ہوں گے ان سے زیادہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات میں بڑے بول کے طور پر نہیں کر رہا، میں جذباتی ہو کے بھی نہیں کر رہا۔ یہ بات 1400 سال سے آپ تمام کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جو بھی حسینی کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا، جو بھی حسینی کھڑا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس بات سے نہیں کہ وہ ظاہری طور پر فتح یاب ہوا، وہ اس حوالے سے کامیاب ہو جائے گا کہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے سچ کی ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کی، تو اگر ایران پر ایٹمی ہتھیار استعمال بھی کر لیے جائیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ڈالے گا۔ تو اس وجہ سے بھی جب دشمن کو پتا ہے کہ ہمارے اس استعمال کے بعد بھی ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز ہی کرے گا۔ دوسرا، ماحولیاتی تباہی کا خطرہ جو ہے، اگر اسرائیل ایٹمی حملہ کرتا ہے یا امریکہ ایٹمی حملہ کر دیتا ہے، دونوں صورتوں میں جو تابکاری یہاں پر پیدا ہوتی ہے، یہاں پر ہوا اور پانی دونوں موجود ہیں، تو دونوں میں اگر آپ خدا نخواستہ یہاں پہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو جو تابکاری شعاعیں ہیں اور جو تابکاری مواد ہے اس کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہوائیں یہاں پہ جو چلتی ہیں وہ تقریباً تمام سب مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ صرف خلیجی ممالک تک ہی رکیں گی، پاکستان یا افغانستان تک آئیں گی۔ ان کا پھیلاؤ آگے انڈیا یا ادھر دوسری طرف ہم دیکھیں تو وسطی ایشیا، اور اگر ہم گلف کی طرف دیکھیں تو اس کا اسرائیل تک بھی جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہ بھی ایسا پہلو ہے کہ جس میں ہمیں پتا ہے کہ ماحولیاتی تباہی کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ چیز بھی ایٹمی حملے کو کے امکان کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرا، بین الاقوامی رد عمل۔ دیکھا جائے تو اکثر ممالک ہم نے جو دیکھا ہے وہ منافقت ہی ان کا پیراہن ہے۔ اقوام متحدہ اور IAEA مسلسل کشیدگی کم کرنے پر زور تو دے رہے ہیں، لیکن مجھے ویسے اس طرح نظر نہیں آتا۔ اسرائیل اور امریکہ اگر رکیں گے تو اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوگی۔ نہ تو وہ اقوام متحدہ کی بات کو سنتے ہیں، نہ ہی IAEA کی وہ بات سنتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر اسرائیلی حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور عالمی برادری سے مؤثر اقدامات اٹھانے کی بات بھی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے ایک بہت بڑا جو رد عمل ہے اس کا سامنا بھی اسرائیل اور امریکہ دونوں کو کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے۔ پھر اسرائیل کی جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ، یہ چوتھی وجوہات ہے، اس کی اپنے اس وقت اقتصادی طور پر اور دفاعی طور پر اتنے برے حالات ہیں، اور پھر امریکہ کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ افواج پورے گلف میں پھیلی ہیں ایران کے آس پاس۔ ایسی صورت میں ایران پر فوری تابکاری حملہ کیا جانا یا ایٹمی حملہ کیا جانا یہ بعید قیاس لگتا ہے، یعنی کہ یہ مجھے تو یہ کم لگتا ہے، کیونکہ اس میں تابکاری کی زد میں
अमेरिकन फौजी भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके अड्डे आपको पता है कि पूरे गल्फ में फैले हुए हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि आपने ये देखा कि फौरी तौर पर इन्होंने अपने फौजियों को, अपने सफारत खानों को, अपने शहरियों को इन इलाकों से निकालना शुरू किया है, तो ये एटमी हमले की तरफ एक अलामत के तौर पर देखा जा सकता है। पांचवा क्या है? पांचवा है ईरान का फैसला। माहिरीन कहते हैं कि अगर ईरान बच जाता है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच जाए, सर्वाइव कर जाता है, ये जिंदा बच जाता है, तो इस सूरत में, और जो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो नए रहबर आए हैं, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी, तो उनका भी हमें स्टांस इस तरह का लग रहा है कि ये अब ज्यादा शिद्दत के साथ एटमी असला तैयार करने की तरफ जाएंगे। इससे पहले आयतुल्लाह खामेनी या आयतुल्लाह खमीनी जो है, उनके फतवे एटमी हथियार तैयार करने के बारे में नेगेटिव थे। लेकिन अब ये जो तीसरे रहबर हमारे सामने आए हैं, ये जवान हैं, और हमें ये महसूस हो रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने से, उनके पहले बयान से, कि ये एटमी असला तैयार करने की तरफ जरूर जाएंगे। क्यों? वजह यह है कि उन्हें पता है कि जिसने एटमी असला तैयार कर लिया है, वो किसी हद तक दुश्मन की दस्तबरद से महफूज हो गया। नतीजा यह है कि जो हमने मुख्तलिफ किस्म की जो हमने तहकीक की, उसमें हमें ये पता लगा एटमी जंग ना होने के इम्कान तकरीबन 70 से 80% है। लेकिन बहरहाल ये एक अंदाजा है, मैं ये नहीं कह सकता। देखें, जैसे मैंने शुरू में मैंने एक व्लॉग में कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इसराइल ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने हमला किया। होता यह है कि हम अपनी तहकीक करते हैं और अपनी बेहतरीन आपको एनालिसिस देते हैं, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस भी होते हैं। उस हवाले से मैं बहरहाल माजरत खा भी हूँ कि मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ, लेकिन ऐसा तो होता है। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या था। सवाल नंबर 2 ये था कि क्या एटमी जंग होने के चांस हैं, कितने हैं? माहिरीन के मुताबिक एटमी जंग होने के इम्कानात कम जरूर है, लेकिन मौजूद जरूर है, और ये बात इंतहाई खतरनाक है। कुछ हालात में ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। जब पहली हम वजह की तरफ आ जाते हैं, इसराइल का आप जानते हैं कि जोग्राफिया बहुत छोटा सा है, इसके लिए तो 2-4 बम ही काफी है। अगर इसको अपना वजूदी खतरा महसूस हुआ, जिस तरह के आजकल बार बार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और शदीद तरीन नुकसान हो रहा है, और अब जब ईरान अपने मजीद बेहतर और एडवांस किस्म के हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, जिनमें 1 टन, 1.5 टन और इससे बड़े जो आप कह सकते हैं कि बारूदी मवाद वाले हथियार जब इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इससे इस तरह जो क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे ज्यादा तबाही हो रही है इसराइल में। और अगर ये तबाही एक ऐसे लेवल पे पहुंची है कि जो इसराइल की बर्दाश्त से बाहर हो, तो आप जानते हैं कि खुफिया तौर पर इसराइल तो एक एटमी ताकत है। तो इस सूरत में जब उसे अपना वजूद ही खतरे में नजर आया, तो वो ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे चांस इसलिए फिलहाल हमें कम नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उसके वजूद को हमें तो खतरा नजर नहीं आ रहा। फिर ईरान का एटम बम हासिल करना, माहिरीन का खदशा यह भी है कि ईरान पर अगर इसकी तख्ता उलटने की कोशिश की गई, हुकूमत बदलने की कोशिश की जाती है, तो जैसे मैंने पहले भी बात की, ईरान के जो नए रहबर हैं, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी, लामहला वो फिर इस तरफ जाएंगे कि वो लाजमी एटमी असला हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि 60% तक तो आसूदगी हासिल कर चुके हैं, 90% तक पहुंचना को बहुत दूर की बात नहीं होती। खुदा न खास्ता को बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है ईरान पे, तो डर्टी बम के तौर पे भी 60% जो यूरेनियम है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी बहुत भयानक होगा, जो कि इसराइल के वजूद को खत्म कर देने के मुताबिक भी हो सकता है। बहरहाल, जैसे मैंने आपसे पहले बात की 60% यूरेनियम की, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर एक बिलवास्ता एटमी हमला भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर बैरूनी हुकूमतें, बैरूनी ताकतें ईरान का तख्ता उलटने की कोशिश करेंगे, तो ईरान इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है। यानी कि वो डेमोना का जो मरकज है, उसको शदीद तरीन अटैक उस पर कर सकता है। हमने ये देखा है कि अब तक जो ईरान ने इस बार हमले किए हैं, वो बहुत ज्यादा अपने निशानों पर लगे हैं, और उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। और अगर ये डेमोना के ऊपर इसका डायरेक्ट हमला हो जाता है, तो उस सूरत में वहां पर एक खुद ही जो ताबकारी मवाद है, वो अपना इसराइल को अपनी लपेट में ले सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान एटमी हमला तो नहीं करेगा, लेकिन करेगा वहां जहां एटमी मवाद पड़ा है, तो डेफिनेटली उससे ताबकारी फैल सकती है, और पूरा इसराइल जो है उसकी लपेट में आ सकता है। इसराइल का मौकफ इस बारे में क्या है? इसराइली सफीर जो शमल इकबास, अब पता नहीं इनका नाम क्या है, मेरी समझ से बाहर है, मुश्किल से पढ़ा जाता है। शमल इकबास हम मैं ऐसे कह देता हूँ, जंग के मकासद में वो कहते हैं कि ईरान के हमने एटमी प्रोग्राम को जीरो करना है, खत्म करना है, और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, खसूसन जिनको वो मिसाइल से वो डरते हैं, तो वो खत्म करना चाहिए। यही मौकफ जो है वो खतरा बढ़ाता है। खतरा इस तरह बढ़ाता है कि ये बहुत मुतशद्दिद उनका एक रवैया है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान तो हथियार अपने खत्म कर दे और इनके सामने सरनिगू हो जाए। ईरान की तारीख तो ये नहीं बताती, और खसूसन जब से ईरान मुसलमान हुआ है, जब से ये हुसैनी हुआ है,
तब से तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एटमी जंग होने की जो हमने ये सारी बात की, जो हमें इम्कानात नज़र आते हैं वो 20 से 30% है। लेकिन ये उस वक़्त बढ़ सकते हैं जब इसराइल का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम बिल्कुल ही तबाह हो जाए या ईरान एटम बम बना दे। दोनों सूरतों में ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि इस एटमी हमले के खदशे को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इस हवाले से जो माहिरीन ने तजवीज़ दी है, आइए उनकी तरफ चलते हैं। सॉरी, सबसे पहले है सफारती क्वेश्चन। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि सियासी मुज़ाकरात, असल बात ही सियासी मुज़ाकरात में है। ये कब शुरू हों, कैसे शुरू हों? अब देखने में ये आया है और सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान और रूस के ज़रिए ईरान के साथ राब्ता किया जा रहा है। इस वक़्त भी जब मैं ये व्लॉग तैयार कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में हैं और वहाँ वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात जारी है। इस वक़्त पूरी दुनिया अपनी सफारती कोशिशें कर रही है। अल्लाह करे कि सफारती कोशिशें कामयाब हों और एटमी जंग का हमला अपना खतरा भी खत्म हो और ये जो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक़्त एक आफ़त आई हुई है, उससे सबकी जान छूटे। फिर इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक नया एटमी माहदा किया जाए। लेकिन ये नया एटमी माहदा इस तरह का होना चाहिए जो तवील मुद्दती हो। ऐसा ना हो कि ट्रंप की तरह का एक और पागल आए और आते ही वो कहे कि जनाब इसको खत्म किया जाए, मेरी तरफ से खत्म समझिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तवील मुद्दती से मुराद है कि कम से कम 50 साल का एक माहदा किया जाए, 100 साल का एक माहदा किया जाए और जिसको सब लोग फिर उसका पहरा भी दें। इसमें ज़ाहिर है ईरान की सेंट्रीफ्यूजेस जो एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, कोई मसला नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उस हवाले से है, 60% से ज़्यादा अफसुदगी को रोका जाए और अगर ईरान मानता है तो अफसुदगी की शरह को कम करवाया जाए। फिर मुसलसल और सख्त निगरानी हो, लेकिन इसके साथ-साथ इसराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। आईएईए की दस्तखत वहाँ तक भी की जाए और उसे भी आईएई के मॉनिटरिंग में दिया जाए। इस हवाले से आलमी इदारों का जो किरदार है, अगर हम उसकी बात करें तो आईएईए को इसराइल और अमेरिका के पिट्ठू बनने की बजाय गैर जानबदार होना चाहिए। पिछली जंग में भी और इस जंग में भी हमें आईएईए जो है, वो अमेरिका और इसराइल का हमें पिट्ठू नज़र आया है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो आलमी इदारे हैं, उनको गैर जानबदार होना चाहिए। जहाँ ईरान पे नज़र रखी जानी चाहिए, वहाँ इसराइल और आईएईए के ऊपर भी नज़र रखी जानी चाहिए। इसराइल की बजाय दुनिया का एतमाद बहाल किया जाना चाहिए, ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी। इसराइल को नहीं बल्कि दुनिया को, बल्कि हम कहें कि गैर जानिबदार दुनिया को यकीन दिलाना होगा कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा है। इसके लिए सख्त निगरानी और शफाफियत की ज़रूरत है। अमेरिका और इसराइल को गैर ज़रूरी, गैर गैर दानिशमंदाना जो बयानात हैं, उनसे परहेज़ भी करना चाहिए और अपनी गंदी हरकतों से भी परहेज़ करना चाहिए। फिर ईरान की सलामती के खदशात को दूर करना चाहिए। ईरान को ये यकीन दिलाना चाहिए कि उसकी हुकूमत को और उसके तख्ता को नहीं उल्टा जाएगा, वहाँ रजीम चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसकी सालमियत को कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा और वो अपने आप को अगर महसूस करता है, तो इससे एटमी जो जंग है, उसके खतरात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। ऐसे हवाले से ये ज़रूरी है कि इसराइल को भी आईएईए की निगरानी में दे दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का ईरान और इसराइल के दरमियान एटमी जंग के हवाले से जो इम्कानात हैं, उनके अपना तज्ज़िया। ये सूरत हाल इंतहाई नाज़ुक है। दुनिया देख रही है कि सियासी मुज़ाकरात कशीदगी को कम कर सकते हैं, हो भी रहे हैं और ये तनाज़ा अल्लाह करे कि जितनी जल्दी हो जो कम हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम है। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे इस हवाले से। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।